We are live now. Yeah, it's visible. Good morning, all. It gives me a great pleasure to welcome you all for this first public awareness session on how to safely transport the amputated part in cut injuries, which is in collaboration with Association of Plastic Surgeons of India and Omnicuris. It is my pleasure to welcome our moderator and coordinator for this session, Dr. Veena Singh, who is the additional professor and HOD Department of Burns and Plastic Surgery from All India Institute of Medical Sciences, Patna, and she's also the executive committee member of APSI, and she's a sub-dean, faculty affairs member, medical educational unit, ME. I'd like to give over to the screen to Dr. Veena. So thank you, Avirami, for your kind introduction. And सभी को नमस्कार, a very good morning to all of you. And जैसा कि अभिरामी ने बताया कि ओमनिक्यूरिस के कोलैबोरेशन के साथ आज हम एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये फर्स्ट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं. And for this, I would like to welcome the speaker of the day, Dr. Ravi Mahajan sir, who is also the president of Association of Plastic Surgeons of India, and who is the director and chief of Amandeep Hospitals at Amritsar. Sir is under his dynamic leadership only, we are going to start this series. And I would also like to welcome the co-moderator of today's session, Dr. Sunil Gaba, who is a professor in plastic surgery at PGI Chandigarh and also the executive committee member of our association. So I would first like to request Dr. Mahajan sir for his opening remarks. Over to Dr. Mahajan sir. Yeah, thank you, Dr. Veena. So good morning, everybody. And on behalf of Association of Plastic Surgeons of India, I welcome you all and to this very unique IEC initiative of the Association of Plastic Surgeons of India in collaboration with Omnicuris. And I'm sure that we will come out with a number of subjects related to plastic surgery, which will be of interest to the public at large. Because ours is a specialty, which is a little ill understood, and then there are a lot of subjects which need to be, told to the public at large, so that they can make a benefit of it, and then they can make a very informed and the conscious decision. So with these remarks, I again, welcome you all, and I'm sure that in collaboration with Omnicuris, we will come out with a number of other subjects which will be of use to the people at large. Thank you, Veena. Thank you, sir. And now I would request Dr. Sunil Gaba, my co-moderator, to start the discussion. Yeah. Thank you, Dr. Veena, and Dr. Mahajan for starting such a wonderful new thing for us. And good morning, everyone. And now I will move to the discussion without wasting any time. आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा मोस्टली डिस्कशन रहेगा कि कोई शरीर का अंग कट जाता है तो उस पे हम कैसे प्रतिक्रिया दिखाएं. So my first question to the Dr. Mahajan is, sir, what are the causes of such injuries and their incidence? What do you think? आपके हिसाब से क्या कारण है कि ये एम्पुटेशन या शरीर के अंग का कटना काफी कॉमन है, क्यों होता है और कौन सा एज ग्रुप ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है? देखो, इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं.
और जो कॉजेज हैं वो प्लेस टू प्लेस वेरी भी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे एरिया में, जैसे कि मैं पंजाब को बिलोंग करता हूँ, तो उसमें फार्म इंजरीज या एग्रीकल्चर इंजरीज जो है वो बहुत कॉमन है। हम जो एम्पुटेशंस है वो एज ए रिजल्ट ऑफ पाउडर कटिंग मशीन बहुत कॉमनली देखते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा होती है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो है वो ज्यादा कॉमन है, एंड द पीपल कम विद एम्पुटेशन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। उसके अलावा दिस कैन बी एज अ रिजल्ट ऑफ रोड साइड एक्सीडेंट। So many times in roadside accidents also, the amputation can take place, and then there can be assault injuries also. So these are the common causes of the amputation, and as I said, that it's going to vary from place to place. And regarding the age, again, it will vary whether these are farm injuries or these are industrial injuries. So जहाँ तक तो ज्यादातर जो है ये यंग लोगों में होती है, बिकॉज यंग पीपल आर दी वर्कर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन फार्म इंजरीज वी सी लॉट ऑफ दीज एम्पुटेशंस इवन इन चिल्ड्रन आल्सो, because these powder cutting machines, in agriculture families, they are there in all the homes, and many times, children start playing, with these which are called tokas or powder cutting machines. तो उसके साथ जो बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों में भी ये इंजरीज जो है वो काफी कॉमन है। लेकिन जनरली टॉकिंग, आई विल से दैट दीज आर मोर कॉमन इन रिलेटिवली यंगर ग्रुप, एंड विच इज एक्चुअली ए प्रोडक्टिव ग्रुप। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो इंजरीज है उनको प्रिवेंट किया जाए, और अगर हो जाती है तो उसको दोबारा जो है रीइम्प्लांट किया जाए, बिकॉज दिस इज ए वेरी प्रोडक्टिव एज ग्रुप दैट वी सी these kind of injuries mostly. तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो इंजरीज हो जाती हैं तो लोग इसको कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या उनको ये नॉलेज है कि ये वापस से जुड़ सकता है अंग या नहीं, एक? और दूसरा, क्या ये नॉलेज हमारे जो आरएमपीज हैं या अदर एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो रूरल एरिया में काम करते हैं, उनको भी क्या ये नॉलेज है कि ये जुड़ सकता है? और उसमें आपका क्या टेक है? देखिए, ऐसे है कि टाइम के साथ जैसे जैसे ये जो फैसिलिटीज है कंट्री में बढ़ी है, तो इसके बारे में अवेयरनेस पहले से तो जरूर बढ़ी है। पहले तो लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता था कि, और वो इसको मैजिक की तरह मानते थे कि कोई कटा हुआ दोबारा भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, क्योंकि बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वहाँ पे इस तरह की सर्जरी अवेलेबल है, तो अब जो अवेयरनेस है वो लोगों में डेफिनेटली पहले से ज्यादा बढ़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अभी भी हमें बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि कोई भी अंग जो कट जाता है उसको रीइम्प्लांट करने की कोशिश जरूर की जा सके, तो सबको पता होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज अभी भी बहुत सारे लोगों को, और खासकर मैं कहूँगा कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको भी नहीं पता कि ये पार्ट जो एम्पुटेट हो जाता है उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। तो मेरा ख्याल है कि हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ताकि इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा सके। हाँ वीना, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर, आपने ये अच्छी बातें बताई कि लोगों का अभी भी नॉलेज इसमें कंप्लीट नहीं है, और धीरे धीरे ये अवेयरनेस प्रोग्राम के कारण नॉलेज और उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ रहा है। अक्सर आमतौर पे देखा जाता है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, गांवों में हो या शहरों में हो, शरीर का कोई पार्ट अगर कट जाता है, तो वहाँ मरीज तो बिल्कुल घबरा जाता है। उसके अलावा जो आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो भी बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं, और सडनली उनको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, क्योंकि जहां से अंग कटता है वहां से बहुत खून बह रहा होता है। तो उस खून को देख करके लोग ज्यादा घबरा जाते हैं, जो हमारी समझ है। तो वहां क्या करना चाहिए उस खून को रोकने के लिए उस जगह से, जिससे मरीज का जो ब्लड लॉस हो रहा है वो कम से कम रहे? ऐसा क्या किया जा सकता है सर? Yeah, I think not we know this is a very important question, because अंग जोड़ने का काम तो बाद में होगा। सबसे पहली जरूरी बात ये है कि वहां से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोका जाए। तो उसके लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो एम्पुटेशन जिस पार्ट से हुई है
वहां पे एम्पुटेशन स्टम्प जो है उसके ऊपर एक प्रेशर बैंडेज करी जाए कि वहां पे जो है कोई, चाहे उस समय हमारे पास एक कपड़ा ही हो, उसको डायरेक्टली जख्म के ऊपर जो है वो बांधा जाए, प्रेशर दिया जाए ताकि ब्लीडिंग रोकी जा सके। लेकिन जो चीज नहीं करनी है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मान लो पार्ट जो है अगर यहाँ से कट जाता है तो यहीं पे प्रेशर देना है और ना कि उसके ऊपर देना है। तो बहुत बार जो बड़ी एक कॉमन मिस्टेक है वो ये होती है कि लोग उसके ऊपर कपड़ा जोर से बांध देते हैं, तो उससे और फिर पेशेंट को जो है हॉस्पिटल लाया जाता है। तो बहुत बार ये भी देखा गया है कि वो जो उसके प्रॉक्सिमली या उसके ऊपर डायरेक्ट कपड़ा ना बांध के उससे ऊपर जाके जो कपड़ा बांधा जाता है उससे बहुत बार ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो ऊपर जा रहा होता है वो रुक जाता है, लेकिन जो ब्लड आगे जा रहा होता है आर्टरीज के थ्रू वो चलता रहता है। सो डायरेक्ट प्रेशर ओवर द वूंड is to be given and nothing should be applied above it, क्योंकि उसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। सो डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड इज द बेस्ट थिंग। और दूसरी चीज जो है वो जो पार्ट है उसको एलिवेट किया जाए। सो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड और दूसरा elevation of that area from where the amputation has taken place. So ये दो चीजें जो है खून का रिसाव जो है वो काफी हद तक कम कर देती है। और हमारे क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आई एम श्योर बहुत सारे डॉक्टर्स भी होंगे, तो एक चीज जो और मैं अपने डॉक्टर साथियों से कहना चाहूंगा कि जहां तक हो सके उनको ये भी कोशिश करनी है कि कोई भी वहां पे जो ब्लड वेसल्स है उसको आर्टरी फोर्सेप्स से नहीं पकड़ना है, क्योंकि अगर हम उसको आर्टरी फोर्सेप्स से या किसी इंस्ट्रूमेंट से पकड़ते हैं तो उससे जो खून की नाड़ी है वो डैमेज हो जाती है और उसमें हमें रीइम्प्लांटेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और 99.9% केसेस में हम ब्लीडिंग को सिंपली प्रेशर से और एलिवेशन से रोक सकते हैं। तो आर्टरी फोर्सेप्स लगाने की या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि 3 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। कटे हुए अंग पर कपड़ा बांधना है उसको जोर से और उसको ऊंचा कर देना है। तो इसमें सर अब ये होता है कि जब ये इनिशियल ब्लीडिंग को रोक लिया जाता है तो जो आसपास के लोग हैं या गांव वाले हैं, मरीज को कई बार डॉक्टर्स के पास जो भी उनके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो कटा हुआ भाग रहता है उसको वो जैसे तैसे कैरी कर करके ले आते हैं और अल्टीमेटली अगर वो सही जगह पर सही समय पर पहुंच भी जाते हैं तो भी वो कटा हुआ अंग दोबारा पुनर्रोपण के लायक नहीं रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर कि जरा हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि हाउ टू सेफली ट्रांसपोर्ट दीज एम्पुटेटेड पार्ट्स, जो ये कटे हुए अंग है इनको किन विधियों से लाना है जिससे कि सर्जरी हो सके और सर्जरी का आउटकम भी बेहतर रहे। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब एक अंग कट जाता है तो उस कटे हुए अंग को अगर हमें दोबारा से रीइम्प्लांट करना है तो उसको प्रॉपरली प्रिजर्व करके ऐसे सेंटर तक पहुंचाना जहाँ पे वो रीइम्प्लांटेशन करी जा सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो उसका तरीका है वो आम लोगों को और जो रेफरिंग डॉक्टर्स हैं उन दोनों को पता होना बहुत जरूरी है। तो उसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो एम्पुटेटेड पार्ट है उसको एक पॉलीथीन बैग में डाला जाए, उस पॉलीथीन को सील किया जाए और फिर किसी भी बर्तन में या एक और बड़े पॉलीथीन में बर्फ डाल के उसके अंदर रख दें। सो दैट इज द वे टू ट्रांसपोर्ट। देखिए अगर किसी डॉक्टर के पास एम्पुटेटेड पार्ट चला जाता है तो वो उसमें एक आध चीज और कर सकते हैं कि वो पार्ट अगर कंटेमिनेटेड है तो उसको नॉर्मल सिलाइन से वॉश कर लें और एक गॉज पीस या एक स्पॉन्ज जो है उसको सिलाइन में वेट करके मॉइस्ट करके उसमें लपेट के फिर पॉलीथीन में डाल दें। लेकिन एक अगर आम आदमी सिंपली उसको पॉलीथीन के अंदर डाल के और बर्फ के किसी कंटेनर में रख दे तो दैट इज गुड एनफ। उसमें भी मैं दो चीजें बताना चाहूंगा जो नहीं करनी है, तो क्योंकि बहुत बार हम ये भी देखते हैं, एक तो जो एम्पुटेटेड पार्ट है जो कटा हुआ अंग है उसको डायरेक्ट
आइस के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर पहले हमें उसको एक पॉलीथीन में डाल के उसको सील करना है, उसको गांठ मारनी है या उसके ऊपर कुछ बांध देना है ताकि पानी उसके अंदर ना जाए। तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आइस इज टू बी अवॉइडेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फटा हुआ अंग है वो बर्फ के ऊपर सीधा नहीं लगना चाहिए, उसको पहले पॉलीथीन में डालें। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने कई बार देखा है, कई डॉक्टर्स भी ऐसे करते हैं कि उसको नॉर्मल सलाइन में या किसी और तरह के फ्लूइड में डिप कर देते हैं। तो ये दो चीजें नहीं करनी है। एक तो जो एम्पुटेटेड पार्ट है वो आइस के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए और उसको किसी फ्लूइड में नहीं डालना। अगर हम ये दो चीजें अवॉइड करते हैं तो उससे जो डैमेज है टिश्यूज को वो अवॉइड किया जा सकता है। और उसके बाद ऑफ कोर्स दैट पार्ट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद द पेशेंट टू a center where these kind of facilities are available at the earliest. बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली जनरल पब्लिक के लिए मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इस पार्ट को कभी भी डायरेक्ट पानी या सलाइन में कांटेक्ट में नहीं लाना है, पॉलीथीन में डालना है और बर्फ में लाना है, जो डॉक्टर रवि महाजन ने बताया हमें। अब सर ये हमने उसको प्रिजर्व कर लिया, सेव कर लिया, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो जो इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आती है जो लेमैन को समझ में नहीं आता कि कितनी देर में पहुंचे, कि आज कटा है तो कितनी देर में वो रिएक्शन दिखाएं, कि इमीडिएटली जाना है, टाइम पीरियड, और कौन कौन से अंग को हम ऐसे बचा सकते हैं इन चीजों से, मतलब कि किस किस अंग का रिप्लांट कर सकते हैं। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट। या देखिए, जो जहां तक टाइम की बात है तो मैं तो सिंपली एक चीज कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको पार्ट को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो टाइम की बात है ना वो उसके ऊपर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। तो आम पब्लिक को तो यही पता होना चाहिए कि अगर कोई भी पार्ट कट जाता है तो उसको उसी समय पॉलीथीन में डालो, गांठ मारो, बर्फ में रखो और इमीडिएटली इसको ट्रांसफर करो पेशेंट के साथ। क्योंकि टाइम फैक्टर जो है वो डिपेंड करेगा कि पार्ट जो है वो किस लेवल से कटा है। तो वो लेवल जो है, अगर एक डिस्टल रीइंप्लांट हम कहते हैं, अगर रिस्ट के लेवल से आगे कटता है, लेकिन अगर उसके ऊपर कटता है तो दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल लेवल एम्पुटेशन, ऊपर के लेवल की एम्पुटेशन। जो तो डिस्टल है, जो कि रिस्ट से आगे की एम्पुटेशन है, उसमें हमारे पास ज्यादा वक्त हम ले सकते हैं। जैसे अगर पार्ट प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं है तो हम उसको 6 से 8 घंटे के अंदर कर सकते हैं डिस्टल लेवल एम्पुटेशन को, जो रिस्ट से आगे की है। लेकिन उसके ऊपर की जो एम्पुटेशन है, अगर वो प्रॉपरली प्रिजर्व्ड नहीं है तो 4 घंटे से ज्यादा नहीं है। और जब मैं ये घंटों की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब है कि उतने घंटों में हमें खून का दौरा एस्टेब्लिश करना है, ना कि हमें उस टाइम पीरियड के बीच में वहां पहुंचना है, क्योंकि पहुंचने के बाद भी उसमें खून का दौरा शुरू करने में टाइम लगता है। इसी तरह से अगर प्रॉपरली प्रिजर्व्ड पार्ट हो तो डिस्टल जो एम्पुटेशन है, जो रिस्ट से आगे की एम्पुटेशन है, उनको हम इवन जो है अगर प्रॉपरली प्रिजर्व्ड है तो 16 घंटे तक भी कर सकते हैं। और कई बार इवन 24 घंटे पे भी लोगों ने फिंगर या थंब किए हैं, सक्सेसफुली किए जा सकते हैं अगर प्रॉपरली प्रिजर्व्ड है। और बट अगर इसी तरह से, लेकिन जो एम्पुटेशन जो है ऊपर के लेवल की होती है, वो उसमें लेट करने में पेशेंट को खतरा होता है। तो इसलिए वो जो एम्पुटेशन है वो अगर प्रॉपरली प्रिजर्व्ड है तब भी 6 से 8 घंटे से ज्यादा के अंदर हम वेट नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि उसमें पेशेंट का नुकसान हो सकता है। तो देखो, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एक आम आदमी को यही ध्यान में रखना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके एम्पुटेटेड पार्ट को हमें लेके जाना है। उसका कारण ये है कि जितना टाइम बीतता जाता है उतनी ही चांसेस जो है सक्सेसफुल रीइंप्लांटेशन के कम होते चले जाते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने कहा, डिस्टल लेवल पे हम लेट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके जो चांसेस ऑफ फेलोर है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाते हैं अगर टाइम बढ़ जाता है। तो एक ही चीज याद रखनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके एम्पुटेटेड पार्ट को प्रॉपरली प्रिजर्व करके और ऐसे सेंटर में शिफ्ट किया जाए पेशेंट के साथ जहाँ पे इस तरह की सुविधा जो है वो अवेलेबल है।
जी सर, बिल्कुल आपने सही बताया कि समय और प्रिजर्व करने का जो तरीका है दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है कि सर्जरी करके इसको रिप्लांट किया जा सके। अब सर, ये कई बार लोगों की तरफ से ये सवाल होता है कि अगर हमें सारी जानकारी भी है तो हमें जाना कहाँ है, किस एक्सपर्ट सेंटर पर हम पहुंच सकते हैं जहां ऐसे कटे हुए अंगों की सर्जरी होती हो। तो क्या अभी के समय में हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जिससे कि गांव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या वहां पे जो पैरामेडिकल स्टाफ वर्क कर रहे हैं, उन लोगों को मालूम हो कि कौन से उनके एरिया में एक्सपर्ट सेंटर्स हैं या कोई एक्सपर्ट डॉक्टर्स जिनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके मरीज को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सकें, या ऐसी कोई व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए अगर नहीं है तो सर इस बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, एज ऑफ नाउ कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके थ्रू किसी भी पैरामेडिक्स को या रेफरिंग डॉक्टर को ये पता हो कि इस पेशेंट को कहाँ भेजना है। लेकिन इसके लिए कोशिश की जा रही है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि ये प्रोजेक्ट जो है डॉक्टर सुनील गाबा ने पीजीआई में शुरू किया है, जिसके अंदर उन्होंने कंट्री के जो अराउंड आई थिंक 150 या 180 सेंटर्स आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ पे इस तरह की सुविधा जो है अवेलेबल है। एंड आई थिंक ही कैन टेल यू बट मोर अबाउट दिस because he is planning to have a app through which this app is available in all the health centers or other peripheral facilities, so they will know that in their area which is the center which is doing this kind of a surgery और वो वहाँ भेज सकते हैं। So as of now we don't have any proper mechanism, but I think in due course of time at PGI I think Dr. Baba is going to come out with some kind of a system where people will know about it. But having said that, as of now I think what we can do is that जो भी सेंटर्स है कंट्री में उनको अपने रीजन में इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, ताकि उनके रीजन में जहाँ से उनके पास पेशेंट्स आते हैं तो कम से कम उनको उस एरिया में जो रेफरिंग डॉक्टर्स हैं या जो पैरामेडिक्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी हो। जैसे मैं अपने सेंटर के बारे में कह सकता हूँ कि हम पिछले 22 साल से यहाँ पे माइक्रोवास्कुलर सर्जरी करते हैं, तो हमारे रीजन में सबको पता है कि अगर कोई अंग फट जाता है तो उसको कहाँ पर लेके जाना है। तो इसी तरह से जो डिफरेंट सेंटर्स हैं दे शुड कैरी आउट द अवेयरनेस प्रोग्राम इन देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस so that people know that where they have to go till the time Dr. Gaba comes out with that app which he is trying to make. I think you can talk a little bit about that. सर ये तो एक जो वीना ने क्वेश्चन पूछा ये सही में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आई थिंक आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू कि आपने ये शुरू किया अवेयरनेस प्रोग्राम। आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है हमारे पास जिससे हम छोटी छोटी जगह पे भी पहुंच सकते हैं। और देखते हैं, अभी जो आपने कहा है आई एम वर्किंग ऑन इट एंड हो सकता है कि हम जल्दी किसी सोल्यूशन के साथ आएंगे। अब रही बात कि अब हम हमारे पास पार्ट आ गया, सेंटर हमें पास आ गया, मरीज हमारे पास पहुंच गया, अब हमने वो जो भी सर्जरी करनी है उसको हम मरीज को कैसे समझाएं, एक बात। दूसरा, समय कितना रहता है सर्जरी का, और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि मरीज को ये नहीं पता होता कि पैसे कितने लगेंगे, वो उसको हमेशा एक कॉस्ट का बहुत ज्यादा रहता है। तो ये तीन बातों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक पेशेंट को समझाने का बात है तो पेशेंट तो जब भी हमारे पास आता है तो हमें उसको एक्सप्लेन करना है कि इसके देखो जब भी एक पार्ट जोड़ने की कोशिश करी जाती है तो उसमें कभी भी ये नहीं होता कि हमें सब केसेस में 100% सक्सेस मिलेगी। तो एक तो हर केस में आपको एक असेस करना है कि इस पेशेंट में रीइंप्लांट के सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, वो किस तरह की एम्पुटेशन है। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल अगर क्लीन कट एम्पुटेशन होती है जिसमें कि क्लीन कट इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल फॉर्डर कटिंग मशीन से है, स्वॉर्ड से है, तो उन केसेस में जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा होता है।
जबकि जो क्रश टाइप ऑफ इंजरीज है, वल्चर इंजरीज है, जिसमें पार्ट सीधा कटने की बजाय खिंच जाता है या वो फिस जाता है, तो उन केसेस में जो सक्सेस रेट है वो कम होता है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट के रिलेटिव्स को इसके बारे में समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो पेशेंट एक बहुत होप के साथ आता है, तो लेकिन हमें उसको उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिस्टिक रखनी है कि उसमें व्हाट आर द चांसेस ऑफ सक्सेस और व्हाट आर द चांसेस ऑफ इट बीइंग फंक्शनल, क्योंकि वो सारा जो है वो किस तरह की इंजरी है, टाइप ऑफ इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। दूसरा आपने सवाल पूछा कि उसमें टाइम कितना लगता है, तो ये जो सर्जरीज है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि इसमें हमें एक एक स्ट्रक्चर जो है वो अलग से जोड़नी होती है। जैसे सबसे पहले आप बोन को जोड़ते हैं, फिर आप टेंडन को जोड़ते हैं, नर्व्स को जोड़ते हैं, फिर ब्लड वेसल्स को जोड़ते हैं जिसमें आर्टरीज जो खून आगे लेके जाती है उनको जोड़ते हैं, वेन्स को जोड़ते हैं, और ये सारा काम जो है ज्यादातर माइक्रोस्कोप के अंदर होता है। तो दीज सर्जरीज आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और जो टाइम है वो डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल की एम्पुटेशन है, दैट कैन वेरी फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम 4 आवर्स टू 10 to 12 आवर्स ऑल्सो। वो डिपेंड करता है कि हम एक फिंगर एम्पुटेशन को रीइम्प्लांट कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं या ऊपर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से टाइम वेरी करता है। बट ओवरऑल तो ये सारी सर्जरीज है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। तीसरी बात आपने पूछी खर्चे की, तो देखो जहां तक इसका खर्चे का ताल्लुक है वो वेरी करेगा कि जो सेंटर जहाँ पे सर्जरी करी जा रही है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या तो सर्जरी जो है वो फ्री होती है या सब्सिडाइज होती है ज्यादातर सेंटर्स में, तो दैट वेरीज फ्रॉम अगेन प्लेस टू प्लेस एंड स्टेट टू स्टेट। जहाँ तक प्राइवेट सेंटर्स का ताल्लुक है वहाँ पे ये सर्जरी डेफिनेटली कॉस्टली होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा जो है वो इसमें जो कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट है वो भी ज्यादा होती है। जो इसमें सूचर्स यूज किए जाते हैं तो उनकी भी कॉस्ट ज्यादा होती है, और जब पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया रहता है फॉर ए लॉन्ग टाइम तो उसमें जो मेडिकेशन वगैरह यूज होती है तो उसकी भी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो I'll not be able to give you a figure about it, because again it is going to vary from place to place, as well as what is the level of amputation और उसमें orthopedic surgeon की कितनी जरूरत है, so that is all going to be variable. But having said that, एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि it is very important for the government to have these kind of centers where these kind of facilities are available 24/7 for 365 days. तो वो तभी पॉसिबल है अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, अगर सरकार जो है ये फैसिलिटी लोगों को देना चाहती है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दे शुड हैव अ बिग टीम ऑफ प्लास्टिक सर्जन। आप अगर एक सरकारी अस्पताल में एक प्लास्टिक सर्जन को पोस्ट कर देंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बंदा जो है 24/7 into 365 डेज जो है इस तरह की सर्जरी के लिए अवेलेबल रहेगा, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। सो that is very important. The governments of the day, they have to understand that the plastic surgery, particularly microvascular surgery, is very very important, and they have to have people available 24/7 in the trauma center. और मैं तो ये चाहूंगा कि इस तरह की फैसिलिटीज जो है वो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो। वो तभी हो सकती है अगर जो गवर्नमेंट जो नंबर ऑफ प्लास्टिक सर्जन, नंबर ऑफ जो प्लास्टिक एंड माइक्रोवास्कुलर सर्जन है उनकी जो है संख्या बढ़ाए, तो तभी हो सकता है, ताकि लोगों को प्राइवेट में जाना ही ना पड़े। ताकि क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये दिस इज लाइक ए बुलेट फ्रॉम द ब्लू, because they are not prepared. This is not an elective surgery, but at the same time expecting private hospitals to do it without cost is also impractical, because a lot of costs are involved for the hospitals. बिल्कुल सही सर, आपने जानकारी दी कि सरकार की भी इस एम्पुटेटेड पार्ट्स की सर्जरी में बहुत उनका इम्पोर्टेंट रोल है।
जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट सेंटर्स पर प्लास्टिक सर्जन्स जो माइक्रो सर्जरी के एक्सपर्ट होते हैं उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि ये केसेस ज्यादा से ज्यादा संख्या में मैनेज हो सकें। तो ये बहुत जरूरी है और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि हमारे कार्यक्रम के थ्रू जो सरकारी के पास भी ये संदेश पहुंचेगा। अब सर कई बार जब ये सारी चीजें हम मरीज और मरीज के घर वाले से ये डिस्कस करते हैं तो उनका बड़ा सीधा सा सवाल ये आता है कि डॉक्टर साहब ये काम तो करेगा ना ये अंग, इस तरह का सवाल उनके जेहन में रहता है, और कितना समय लगेगा। तो सर एज अ माइक्रोसर्जिकल एक्सपर्ट हमें किन बातों का इंफॉर्मेशन जो है वो मरीज और उनके घर वालों को बताना है, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी रह सके और वो इसके लिए मानसिक तरीके से पूरी तरह से तैयार रहें कि कितने समय तक उन्हें रिहैबिलिटेशन पीरियड में रहना है, क्या फिजियोथेरेपी करना है, किस तरह की बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि जो सर्जरी का रिजल्ट हो वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो इस पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर कि आप बताएं कि पेशेंट से और क्या क्या चीजें उनको जानकारी देनी है। डॉक्टर मीना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, क्योंकि बहुत बार लोगों के जहन में ये बात होती है कि जैसे आपने एक बार जोड़ दिया और साथ के साथ ये काम करना शुरू कर देगा। तो देखो, जहाँ तक फंक्शनैलिटी का ताल्लुक है, दैट इज अगेन गोइंग टू डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एम्पुटेशन इट इज। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जो क्लीन कट एम्पुटेशन है उसमें फंक्शनल रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जहाँ पे पार्ट जो है वो क्रश हो जाता है या वल्स हो जाता है, खिंच जाता है, उन केसेस में जो फंक्शनल रिजल्ट्स है बहुत अच्छे नहीं होते। तो patient, depending upon the type of injury, I think we need to explain to the patient and the relative कि इस पर्टिकुलर केस में फंक्शनल रिजल्ट कैसे रहेंगे। एक चीज तो ये इम्पोर्टेंट है, सो दैट दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड दे डू नॉट फील लेटर ऑन कि भी शायद इसकी सर्जरी अच्छी नहीं हुई इसलिए है, क्योंकि इंजरी की टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल रिजल्ट जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात जो पेशेंट को समझाने की जरूरत है वो ये है कि सर्जरी इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। Physiotherapy and rehabilitation is, another very, very important part of the whole process. So they have to be mentally prepared कि एक बार जब पार्ट जुड़ जाता है तो उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पार्ट को फंक्शनल बनाया जा सकता है। अगर जो पेशेंट्स इतने कंप्लायंट नहीं होते, इतने कोऑपरेटिव नहीं होते, उनमें फंक्शनल रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ पाते इसी वजह से। तो इसलिए हमें, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम शुरू से ही उनको मेंटली प्रिपेयर करें कि इसमें जब एक बार पार्ट जुड़ जाएगा तो उनको एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन करवानी पड़ेगी। और इसमें टाइम जो है दैट कैन वेरी फ्रॉम अबाउट 3 months to 6 months डिपेंडिंग अपॉन अगेन व्हाट इज द लेवल ऑफ एम्पुटेशन। तो मुझे लगता है ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें शुरू में भी, और जब पेशेंट का ट्रीटमेंट हमारे पास चल रहा है, पेशेंट फॉलोअप में आ रहा है, तो उसको मेंटली प्रिपेयर करना जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत बार पेशेंट्स जो है वो कहीं रिमोट एरिया से होते हैं, तो जहाँ पे फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो उनको हमें इस बात के लिए भी प्रिपेयर करना जरूरी होता है कि later on they might have to stay near the institute to get the physiotherapy done, so that the part can be made functional, because in remote areas the physiotherapy facilities may not be available, and even if available then they may not be experts in these kind of rehabilitation process. So generally what we do is we start telling the patient right in the beginning, during the follow-up period, that after we have removed all the dressing and all, and then physiotherapy has to be started, so they have to stay somewhere near the center and undergo the physiotherapy. So उनको mentally prepare करना बहुत जरूरी है। सर बहुत ही तरीके से आपने ये सब कुछ बताया। तो एक कटे हुए अंग को जोड़ने के बाद कम से कम 6 महीने से 1 साल तक उसको मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। अब सर, आप पिछले 25-30 साल से इस तरह की सर्जरीज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम इन
इंजरीज को रोक कैसे सकते हैं, कैसे हम इनको प्रिवेंट करें? कोई आपको ऐसा आइडिया आता हो दिमाग में कि यार ये चीज हम कर लें तो इससे ये हमें फायदा हो सकता है, एक सोसाइटी को हम ऐसा कोई मैसेज दें? अगेन अभी हम सब एक ट्रीटमेंट की बात करते हैं हमेशा, लेकिन समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, एज इट इज सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो वी मस्ट ट्राई टू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ इंजरी, और उसके लिए अगेन यू नीड ए पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हाउ टू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ इंजरीज. तो उसमें हमने एक्चुअली हमारी जो सब स्पेशलिटी इंडियन सोसाइटी ऑफ सर्जरी ऑफ हैंड है, उसके अंडर लास्ट ईयर एक पूरा कैंपेन किया था जिसमें हम प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं. तो उसके लिए मुझे लगता है कि एट अवर लेवल in association with some NGOs, we should carry out some programs where we can go to the various industries, or we can go to the villages and tell them that how they can incorporate some of the safety devices into their equipment. And fortunately, now a lot of machinery, particularly in the industry, they do have safety devices. And but unfortunately, in farm injuries, still people are not very aware, and the kind of equipment which is used, that still doesn't have many safety measures, particularly for preventing the children. So what we have been doing is that been going to the villages and telling people that they should keep the children away from these tokas, or when these are not being used, they should be kept locked, and they also should have some safety devices so that the hand cannot be introduced inside. So I think a lot needs to be done on our part as well as on the part of other organizations and NGOs so that these kind of injuries can be prevented. And there is less and less need for doing the implantation if these injuries can be prevented. बिल्कुल सही कहा सर. एज वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चाहिए, लोगों को जागरूक होना होगा और कुछ मशीनों को प्रतिबंधित करना होगा. तो सर अब लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो हमारे डिस्कशन के कुछ की पॉइंट्स हैं, जिन बातों का बिल्कुल ही मरीज और उनके घर वाले, उनके आसपास के लोगों को एकदम ही ध्यान रखना है, जिससे कि कटे हुए अंगों की सर्जरी सक्सेसफुल हो सके, उनका आउटकम हो सके, वो 4, 5, 6 पॉइंट सर कुछ अगर आप दोहरा देंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत ही लाभ हो. जैसे कि हमने शुरू में बात करी, तो जब भी एम्पुटेशन हो, पहला काम ये है कि वहां से ब्लीडिंग रोकी जाए. तो वो हमें प्रेशर से रोकनी है, हमें पार्ट को एलिवेट करके ऊंचा रख के रोकनी है. दूसरा, उसकी प्रॉपर प्रिजर्वेशन कैसे करनी है. So I think at the end of my talk, I'll be showing a video, that how you have to preserve the part. So I think we will reiterate that point again in that video presentation. और फिर उसको जितना जल्दी हो सके उसको ऐसे सेंटर पे लेके जाना है जहाँ पे माइक्रोवास्कुलर सर्जरी हो सके. तो उसके लिए हमने ऑलरेडी बात करी है कि लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए हर रीजन में कि कौन सा सेंटर है वहाँ पे इस तरह की सर्जरी जो है वो करी जा सकती है. और मुझे लगता है जहाँ तक पब्लिक की बात है तो उनका तो काम यहाँ पे खत्म हो जाता है. उसके बाद डॉक्टर का काम शुरू होता है, और डॉक्टर को उनको प्रॉपर काउंसिल करना है और उनको आगे का बताना है कि कैसे जो है किया जा सकता है, और जहाँ तक हो सके ये इंजरीज प्रिवेंट करनी. These are the important points about the Thank discussion. you. And now I request the IT team to play the video as suggested by sir. Yeah, can you do it at your end, or you would like me to do from my? Sir, if you like, you there, can also somebody share. is there from. Yes, Abhirami. I can share my screen if they allow me. Sir, she has started sharing. Okay, that's fine. So these are some of the slides. Again, telling that how to preserve the amputated part. So as I said, that you can rinse it in the normal saline or ringer lactate so that the gross contamination that is removed.
Then you wrap it in a moist gauze piece and then place it in a waterproof polythene bag, which has to be sealed. And then you put it in a container which is having ice and water. Next, please. And I would like to reiterate again this thing that एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आइस के साथ नहीं आना चाहिए और किसी भी फ्लूइड के अंदर नहीं डालना है, ये दो चीजें नहीं करनी। तो क्या करना है, हमें इसको एक पॉलीथीन में डालना है और उसके बाद उसको आइस में रखना है, सो दैट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है आइस के साथ ना आए। And then, I will just, can you play this video, please? I am not able to share this video. Can you play it, please? The video. I think Abhirani, you can stop sharing and sir can share the screen and he can play from his laptop. Yes. Just double click on the video. Just double click on the video. It will come. Double click. Yeah. Play. Yeah, just click it. No, somehow it's not playing. Mhm. Yes.
Sir, voice in the video is not coming. You can explain it. सर आप बोल सकते हैं सर, उससे आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, वीडियो की वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। So when sharing, please click share sound option enable in the sharing. We can't hear. So you can stop sharing and share again, and please enable the share sound option when sharing. Okay, I was able to hear. You were not able to hear? Yes, sir. Huh? No, so there was no voice actually. Okay. It was only video where we can see. But somehow I was hearing. I don't know. Okay, so actually the voice was not shared, sir. That was the reason. But anyways, all the steps were very nicely visible, and I think it is understandable from the viewer side also. How to wash and how to pack. Anyway, so there were few more slides. Can you share those slides? Yes. So please enable share sound option below while sharing so that we can, if any video can hear the voice and sound. Abhirami, you share the sir's presentation. He has 2 more slides to show. Okay, I wish. Yeah, this is just to show that the referring doctor should immediately make a contact with the microvascular surgeon or whatever center which he's planning to send the patient to, so that the team there is ready for reimplantation, so in order to avoid any further delay. So I think this was again very important that the team should be ready there for doing the microvascular surgery. This is very important, particularly in cases of proximal level reimplantation, where time is of great significance. So next, please. This is just to show, some of the pictures, where the reimplantation has been done, because these parts reached to us well in time and well preserved, and we were able to reimplant all these. So can you show the other slides one by one? So somehow the videos are not working in this also, but this is a small child, where the thumb and the index finger nose have been reimplanted, and the hand is fully functional. Though the video is not working in this, but this is a completely functional hand. Next, please. Yeah, similarly, this is a case of thumb amputation. Again, this fellow, is able to perform all the functions. This is all possible because he reached quite late to us, but the part was well preserved. So that was the reason that we were able to do the reimplantation. Next, please. So similarly, this is again, as I was telling you, the amputation in children is very common in our part of the country, and because of TOCA, but if they are brought well in time, well preserved, so they can all be put back and with very good functional results. Next, please. Similarly, this is a wrist level reimplantation, and hand is fully functional after a period of time, after the patient has undergone physiotherapy and all. Next. And this is the arm level amputation. And these level of amputations
the time is of great significance. The patient must reach to us, preferably within 3 to 4 hours, so that within 6 hours period of time, we are able to start the blood circulation. So only then you can make these reimplantations successful as well as functional. Thank you. So I am sorry about the video part. I thought they must have, Checked it. tried it, but anyway. So I No think issue, we sir. have been Abhi, able to carry out the message. yes, sir. Yeah. And मुझे बिल्कुल लग रहा है कि जो भी आपने बताया है, जितने इंफॉर्मेशंस आपने शेयर किए हैं पब्लिक के साथ, they will be extremely benefited from that. And these things are very important because ये सारे steps में से अगर कोई भी step miss हो जाता है, then the whole exercise is a waste. अगर मरीज सही समय से पहुंच भी जाता है, लेकिन अगर पार्ट्स को सही तरीके से नहीं प्रिजर्व करके लेकर के आते हैं, तो फिर सर्जरी नहीं हो पाती है. या फिर अगर हम प्रिजर्व भी करके लेकर आ रहे हैं और 4 जगह घूम रहे हैं बिफोर वी एक्चुअली रीच द एक्सपर्ट, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है. तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारियां बहुत क्रिस्प वे में बताया हमारे दर्शकों को. एंड आई एम वेरी होपफुल, आई डू बिलीव कि इससे इन लोगों को फायदा होगा. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द viewers that they should not keep this information to themselves only. They should try to spread it. कि अगर गांव में किसी 1 या 2 लोगों को पता है, तो वो अपने आसपास के सभी लोगों में इन इंफॉर्मेशन को शेयर करें. तो इसी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम के अंत की तरफ पहुंच चुके हैं. And thank you so much, Dr. Ravi Mahajan sir and Dr. Sunil Gaba and the IT expert team for this program. Without everyone's help, this program would not have been successful. So thank you so much and have a great day, everyone. Thank you, Dr. Veena. Thank you very much. Thank you. Thank you, Veena. And I request Abhirami to stop live streaming.